Okay. So good morning, everyone. Let us start the class. Okay. So this is our first class for today. Okay, which is your water resource engineering, and we will learn the online canal design. Okay. In the previous class, we have designed the online canal based on which theory? Based on which theory did we Kennedys. design? Kennedy's theory, right? So today we will, and there were some drawbacks in the Kennedy theory. Okay, so in considering those drawbacks, another concept, Lacey. Okay, Lacey has generated. So today we will learn that how to design the canal, unlined canal. Unlined means these are in natural soil. See, banks are of natural soil. There is no concreting. Okay, so in such case, what should be this breadth of this bottom level? Okay, what should be the side slope, what should be the perimeter, weighted perimeter, what should be the cross section area? Now we will design using Lacey's theory. Okay, this is, we can say there is some improvement over the Kennedy's theory. So these are the topic that we will learn. We will discuss the Lacey's theory. Here he generated one term, what to say, he came up with a new, in Kennedy, he described the channel only to be the stable or rezyme channel, but Lacey had described that there are three types of rezyme channel. Okay, we will discuss about those things also. What are the different types of the rezyme channel? Okay, now what is the design steps of this Lacey's theory? How to design the canal using Lacey's theory? Okay, and lastly, there are some drawbacks of this Lacey theory only. Sorry, this will be Lacey. Okay, so there are some drawbacks also in this theory. So we will discuss that also. And based on the concept of Lacey theory, there are several. He has derived several empirical formula. Okay, in Kennedy he has derived only single formula for critical velocity, but in Lacey he has derived separate formula for all the parameters, for your perimeter, weighted perimeter, okay, for hydraulic mean depth, for slope. He generated several empirical formulas. Okay, and using all those formulas and concept of Lacey's theory, we will solve one numerical. See, he put forward the concept of rezyme channel. Put forward the concept of rezyme channel. Okay, we will discuss about this. What do you understand by the rezyme channel? Now, can you please tell me in Kennedy's theory, what was the definition of a rezyme channel? We can say rezyme or stable. इस चैनल को तुम रेजाइम चैनल या स्टेबल चैनल बोल सकते थे? No scouring, no silting. Very good. No scoring, no silting. That was the definition as per Lacey's theory. But sorry, Kennedy's theory. But Lacey ने क्या किया, उसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया है कि सिर्फ नो स्कोरिंग नो सिल्टिंग होने से तुम्हारा वो उसको रिजाइम चैनल नहीं बोल सकते. ओके, देयर आर सम अदर कंडीशंस आल्सो. If all the conditions are satisfied, then only we can say that this particular cross sectional channel is your cross section of a channel is rezyme in nature. Okay, also he, see, in Kennedy he said that your critical velocity, what to say, particles, जो particles इसके अंदर है water के साथ flow हो रहा है, silt particles, it should be in suspension condition in order to provide that no scoring no silting. अगर ये सस्पेंशन में रहेगा तो क्या होगा, वो स्कोर भी नहीं होगा और सिल्ट भी नहीं होगा. ओके, बट वहां पे इन कैनेडी व्हाट ही सेड, those eddy current will be formed or generated only from the base. मतलब जो बेड लेवल है सिर्फ वहीं से तुम्हारा ये जो एडी करंट फॉर्म होता है. ओके, बट लेसी ही मेड सम मॉडिफिकेशन. क्या किया उसने कि ही सेड दैट in Kennedy's it was, he said that this eddy current is proportional, is dependent on the depth of this
सेक्शन, ओके। डेप्थ मतलब ये कि ये बेड लेवल से ही तुम्हारा जनरेट होता है। whereas in Lacy what he did, he said नहीं, ये पूरा पेरीमीटर से जनरेट होता है, ओके। पूरा वेटेड पेरीमीटर से जनरेट होता है एडी करंट, मतलब ये साइड स्लोप से भी एडी करंट फॉर्म हो सकता है, ओके। सो दिस वाज द मेन ड्रॉबैक, जिसको मॉडिफाइड करके लेसी ने क्या किया, कैनेडी ने बोला था सिर्फ नीचे से एडी करंट होता है फॉर्म, लेसी ने बोला नहीं, साइड से भी होता है, ओके। सो पेरीमीटर के साथ ये डिपेंडेंट है, वेटेड पेरीमीटर के ऊपर ये एडी करंट डिपेंडेंट है, ओके। See, the silt is kept in suspension by the vertical components. All these are vertical components, okay, of the eddy current generated at all the points of force normal to the weighted perimeter. ये जो भी perimeter है उसका normally जो force generate होता है उससे eddy current create होता है. Now see, he gave idea about the Reisman channel. Okay, this was the definition as per your Kennedy's. लेकिन यहाँ पे बोला है, लेसिस थ्योरी ने बोला कि सिर्फ रेजाइम चैनल इससे सिर्फ डिफाइन नहीं करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजाइम चैनल, ओके. कैनेडी के लिए एक ही रेजाइम चैनल था, क्या, नो सिल्टिंग नो स्कॉरिंग. जिस सेक्शन में कोई सिल्टिंग स्कॉरिंग नहीं होता उसको हम बोलेंगे स्टेबल और रेजाइम. बट दैट इज नॉट द केस, ओके. ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी सिल्ट नहीं होगा, कभी भी सिल्टिंग नहीं होगा, कभी भी स्कॉरिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है. सो देर आर 3 केसेस, ओके. ट्रू रिजाइम, इनिशियल रिजाइम, फाइनल रिजाइम. अब ट्रू रिजाइम का मतलब है कि वही, इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू द कंसेप्ट ऑफ कैनेडी, मतलब कि वहां पे तुम्हारा हेलो मैम. हाँ हेलो मैम, অর্পণ পারলে অ্যাড হতে ইয়ে করে অ্যাকসেপ্ট করুন তো. अच्छा हो, अच्छा अच्छा, ठीक है. सो ट्रू रीजन क्या है, इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, वी विल डिस्कस, ओके. नाउ ट्रू रीजन, as I said, there are several conditions which are to be satisfied so that we can say that that particular section is under true reason. ठीक है, क्या क्या है, एक है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन से डिस्चार्ज जो भी फ्लो हो रहा है इट शुड बी कांस्टेंट, मतलब वो वैरी नहीं करेगा, इट शुड बी कांस्टेंट, ओके. दूसरा क्या है, द सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, मतलब जितना अमाउंट तुम एक पर्टिकुलर सेक्शन से यहाँ पे कैरी कर रहे हो थ्रू आउट दैट रिजाइम चैनल, एक सर्टेन लेंथ तक रिजाइम चैनल है, स्टेबल चैनल है, मतलब वही सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ही सस्पेंड होता होता जाएगा, ओके. दैट इज द सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट. दूसरा क्या है, सिल्ट ग्रेड, मतलब प्रॉपर्टी एंड साइजेस, जो भी सिल्ट कैरी करके पार्टिकल्स कैरी करके आ रहा है उसका प्रॉपर्टी एज वेल एज उसका साइज, इट शुड नॉट वेरी, ओके. वो कांस्टेंट अगर रहेगा तभी हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर चैनल सेक्शन इज योर रिजाइम, टू रिजाइम, ओके. और दूसरा क्या बोला है, जो भी यहाँ पे पार्टिकुलर्स को, जो भी पार्टिकल्स फ्लो हो रहा है इट शुड बी इनकोहेरेंट एलुवियम सॉइल इन नेचर. दैट मीन्स व्हाट, इनको इसका मतलब है कि सपोज ये एक तुम्हारा चैनल सेक्शन हो गया, यहाँ से पार्टिकल्स भी जा रहा है रिवर के साथ, ठीक है, उसके साथ. तो ये पार्टिकल्स जो है इट शुड बी इनकोहेरेंट एलुवियम इन नेचर. उसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल अगर बाय चांस इफ दे सेटल डाउन इन द बेड लेवल, ओके, अगर ये सेटल डाउन अगर होगा भी तो क्या हो जाएगा, वो इट विल अगेन फिर से सस्पेंशन में हो जाएगा, ओके. मतलब फिर से ये इजीली स्कोर हो जाएगा ड्यू टू वेलोसिटी और फोर्स ऑफ द वाटर, ओके. मतलब ये पार्टिकल्स क्या है कि खुद ही अगर बाय वेट, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, अगर ये सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली फिर से क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एडी करंट एंड ऑल अगेन इट विल स्कोर्ड अप. तो ये खुद ही तुम्हारा सस्पेंशन में रहेगा हमेशा. सो इसको ही बोलते हैं इनकोहेरेंट एलुवियम. तो जब ये सेक्शन में ये सब पार्टिकल्स आर इनकोहेरेंट एलुवियम, द सिल्ट चार्ज मतलब अमाउंट ऑफ द सिल्ट इज कांस्टेंट, ठीक है. सिल्ट ग्रेड टाइप्स एंड साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, ठीक है, एंड द डिस्चार्ज which is flowing is also constant, then only we can say that this particular regime is the true regime. अगर ये सब कांस्टेंट होगा मतलब क्या है, वो इसका सेक्शन इट विल नॉट चेंज, राइट. मतलब सिल्टिंग भी नहीं हो रहा, स्कॉरिंग भी नहीं हो रहा, तो क्या रहा है, ये कांस्टेंट रह जा रहा है, ओके. सो बट इन प्रैक्टिस ये क्या पॉसिबल है, ऐसा होना पॉसिबल है एकदम ट्रू रिजाइन होना? टेल मी.
बोलो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये तुम्हारा पॉसिबल है कि ये हाँ सब? मैम, it was सब आइडियल केसेस। यस, दिस इज फॉर ओनली आइडियल केस, राइट? तो अभी लेसी ने, लेकिन कैनेडी का क्या था? कैनेडी बोला था यही है ट्रू रीजन, उसका जो भी सेक्शन है दैट इज ट्रू, एकदम परफेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे नो स्क्वाडिंग नो ये सब हो रहा है। लेकिन लेसी ने क्या बोला? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो ही डिस्क्राइब और दो उसने डिफाइन किया है। ओके, what was that? That is initial regime and another is your final regime. Okay, initial regime मतलब है कि जब तुम्हारा कैनल फॉर्म हो रहा है। ओके, कैनल कहाँ पे फॉर्म होता है? इट इज बेसिकली why we are designing canal. Canal is constructed in order to transfer water from one resource to the field, right? तो जब रिसोर्स से वो कैनल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो स्लोली स्लोली क्या हो जा रहा है? देयर मे बी चेंजेस इन बेड स्लोप, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर, ये सब में चेंजेस आ सकता है, बिकॉज तुम्हारा फ्लो हो रहा है, राइट? वाटर सडनली फ्लो हो जा रहा है वहां से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सब चेंजेस आ सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनिशियल रेजाइम, स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन पहुंचते पहुंचते एक सर्टेन टाइम तक क्या हो जाता है? विद ड्यू कोर्स व्हाट हैपेंस? स्लोली वो जो क्रॉस सेक्शन है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, पेरीमीटर है वो भी कांस्टेंट हो जाता है। ओके, सो मतलब क्या है? इट इज नाउ रीचिंग टुवर्ड्स द ट्रू रेजाइम, बट दैट इज नॉट द ट्रू रेजाइम। ओके, वो एक जाके स्टेबिलिटी में मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर सम टाइम्स। ओके, so that condition is called the final regime. But this, इसकी वजह से क्रॉस सेक्शन में वैरी, इसका जो सेक्शन है ये वैरी होता रहता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स इट इज कैरिंग। जो सिल्ट पार्टिकल जो कैरी कर रहा है उसके ऊपर ये क्रॉस सेक्शन वेरी करता है। अगर ये कोर्सर पार्टिकल्स कैरी कर रहा है देन इट विल लुक सेमी इलिप्टिकल। ओके, देखो कोर्स हो जा रहा है तो क्या है? ये सेमी इलिप्टिकल सेक्शन फॉर्म करना जनरेट कर देगा। ओके, एंड इफ योर सिल्ट विच इज कैरिड इन द कैनल, अगर वो फाइनर टाइप का है तो फाइनर साइज का है तो क्या हो जाएगा? इट विल टेंड टू फॉर्म लाइक दिस क्रॉस सेक्शन। ओके, तो ये सेमी सर्कुलर ऐसा फॉर्म हो जाता है। ओके, तो मीडियम साइज का ऐसा अप्रोक्सीमेट ट्रैपेजॉइडल का हो जाता है। सो दीज आर थिंग्स, दिस मे कम इन योर एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि चैनल का शेप बोलो व्हेन योर पार्टिकल इज कोर्सर इन नेचर, तो सेमी इलिप्टिकल होगा, ठीक है। अगर ये फाइनर है तो ये सेमी सर्कुलर होगा, एंड इफ इट इज इन मीडियम साइज देन इट विल बी ट्रैपेजॉइडल। ओके, सो दिस आर द रेजाइम। ये डिफरेंस है तुम्हारा लेसिस और इसमें। क्लियर डिफरेंस बिटवीन इसमें और इसमें? और एक डिफरेंस क्या था कि कैनेडी सेड दैट एडी करंट इज जनरेटेड ओनली फ्रॉम द बॉटम, लेकिन लेसी ने क्या बोला? नो, इट इज जनरेटेड फ्रॉम इट्स पेरीमीटर, मतलब फ्रॉम साइड वॉल्स आल्सो एज वेल एज बॉटम, ठीक है। तो ये वाला इसका मॉडिफिकेशंस है। Now let us go to the design step. So see, these things will be given to you. Okay, these things, discharge, what is F? I will say what is F. Okay, F is nothing but the silt factor. ठीक है, यहाँ पे जो बोला था सिल्ट का क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी शुड बी कांस्टेंट, ग्रेड शुड बी कांस्टेंट, जो बोला था, इट इज डिफाइंड बाय दिस F factor. Okay, which is called the silt factor. And again this silt factor is dependent upon the diameter of the पार्टिकल्स। ओके, तो पार्टिकल्स के डायमीटर के ऊपर तुम्हारा ये डिपेंड करता है F का वैल्यू। आई विल शो यू। ओके, एंड क्या क्या दिया रहेगा? एज वेल एज द साइड स्लोप। साइड स्लोप देखो, हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल में अगर दिया रहेगा तो ऐसा x:1, ठीक है, 1/2 See, all these things are provided to you. अब डिजाइन स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट वेलोसिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय द लेसी। इसको तुम लोग डिराइव करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कैनेडीज में एक एम्पिरिकल फॉर्मूला था क्रिटिकल वेलोसिटी का, ठीक है, मतलब 0.546 m × 10⁻�64, वैसे इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करते करते he has derived one empirical formula. Okay, where Q is the discharge, F as I said this is the silt factor, and अगर दिया नहीं रहेगा we have to derive using this formula. Okay, 1.76 √d, where d is the particle size or diameter of the particle in mm, millimeter में है ये. Okay, so using this formula, please note down this formula everyone. Using this formula we can calculate V. Okay, नाउ व्हाट इज उसके बाद क्या करना है? अगेन ही उसके बाद हमको करना है
get the cross section area. Okay, we know Q is given, V is calculated using this formula. Okay, so what is the area formula? Q equals to A into V. Q equals to A into V. So here, from here we can say A equals to Q by V. Okay, so these two are given. Now this is another empirical formula. Okay, वो पिछले बार में हम लोगों ने डिराइव किया था पेरीमीटर का फॉर्मूला यूजिंग दैट वन, ट्रेपेजॉइडल का पेरीमीटर जो भी है फॉर्मूला डिराइव किए थे, लेकिन इसमें he has derived one empirical formula, okay, which is dependent upon the Q. Now please note down these formulas. ये नोट डाउन कर लिया तुम लोग? यस मैम. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सी, आफ्टर नोइंग ए एंड पी, हमको ए एंड पी हमको पता है. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर, वी हैव टू गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी एंड डी. ये वाला थोड़ा ह्यूज टाइप का एक आएगा, ठीक है? इसको जब प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे देन इट विल बी मोर क्लियर. अब देखो ए एंड पी का हमको, देखो यहाँ से क्या है, वी गॉट ए, वी गॉट पी, ठीक है? ये तो फॉर्मूला से आ रहा है, बट हम लोग जनरेट भी कर सकते हैं ए का फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, राइट? कि ए इक्वल्स टू क्या था, बी डी प्लस एक्स डी स्क्वायर, एंड पी इक्वल्स टू क्या था, बी प्लस क्या था, 2d इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? ये जो था, देखो ए इक्वल्स टू था बी डी प्लस एक्स डी स्क्वायर, वेयर एक्स इज द साइड स्लोप का तुम्हारा हॉरिजॉन्टल का पोर्शन, स्लाइड स्लोप का हॉरिजॉन्टल का वैल्यू. ओके, सो एक्स डी स्क्वायर एंड p इज व्हाट, p प्लस ट्वाइस ऑफ d इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे x इज व्हाट, योर 0.5, तो यहाँ पे 0.5 होगा. अब ये दोनों देखो, यहाँ पे a का वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम लास्ट स्टेप. ओके, स्टेप 4, स्टेप 2, स्टेप 3 से हमको p का भी वैल्यू मिल गया था. ओके, x इज गिवन, सी x इज गिवन. ओके, अब यहाँ पे व्हाट आर द अननोन वैल्यूज? a पता है, x पता है, p पता है, देन b एंड d आर द अननोन वैल्यूज. ठीक है, अगर दो अननोन वैल्यूज रहेगा तो हमको कितना इक्वेशन चाहिए? दो. हाँ, दो इक्वेशंस, राइट? तो इसलिए ये दो इक्वेशन हमको यूज करना है. ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा. ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे नाउ यूजिंग. तो फिर क्या हो जाएगा, आफ्टर ये दो a और p तो हमको कैलकुलेट करना ही था, ये निकल आया. आफ्टर गेटिंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, वी विल गेट b एंड d वैल्यू आल्सो. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंप्यूट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ r. r इज व्हाट, वहां पे तुम लोग का उसमें क्या था, a बाई p था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इन्होंने डिराइव कर दिया है. ओके, दिस इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला एज पर लेसी, 5/2 इंटू बी स्क्वायर बाई एफ. ओके, एंड आफ्टर लास्ट स्टेप क्या है, स्लोप निकालना. सो हमको क्या करना है, डिजाइन मतलब है एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, ब्रेथ निकालो, डेप्थ निकालो, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ r निकालो, स्लोप निकालो, राइट? बेड स्लोप एंड साइड स्लोप. साइड स्लोप इज ऑलरेडी गिवन, सो बेड स्लोप निकालो. सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ प्लीज नोट डाउन दिस टू फॉर्मूला. ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन करो. ओके, कर लिया everyone? Yes, ma'am. ओके, नाउ ड्रॉबैक्स. इसमें ड्रॉबैक, इसमें भी यही ड्रॉबैक है. क्या, ये इंपेरिकल है, मतलब कोई, इट इज इंपेरिकल का मतलब भी होता है कि किसी एक चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट, बार बार एक्सपेरिमेंट करके हम डाटा कलेक्ट करके एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लेस इज नॉट वेरिंग. प्लेस मतलब चैनल इज नॉट वेरिंग. एक ही चैनल के, जैसे कैनेडी ने किया था बारी दो भी चैनल के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करके एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव किया था, वैसे इन्होंने भी एक ही चैनल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक फॉर्मूला डिराइव किया. तो उसका मतलब क्या है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर, या उस सिमिलर उस टाइप के चैनल के ऊपर ही तुम्हारा वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है. ओके, सो दैट ইজ ম্যাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, মানে বাড়ি ডবে তোরে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে বলেছিলেন. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আর এইটা ম্যাম সব জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে. तो देखो ये सब क्या होता है, तो उस, सो दिस इज द एम्पिरिकल. ये तो इसका भी ड्रॉबैक है. ओके, ना दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट जो यूज किया है इन्होंने, ट्रू रीजन. ओके, लेसी सेड दैट इन लोग का सेक्शन जो भी है, इट्स अ ट्रू रीजन. अगेन एज आई सेड, ट्रू रीजन आइडियल केस के लिए होता है, इन जनरल प्रैक्टिकली ये होता नहीं है. ओके, थ्योरेटिकली के लिए सब ठीक है.
अगेन he gave only one factor, f factor. देखो f factor बार बार यूज किया है, सिल्फ फैक्टर r के फॉर्मूला में, s के फॉर्मूला में, राइट। तो ये सिर्फ एक फैक्टर से, अगर तुम एक ही सिंगल फैक्टर से उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे कि सिल्क का प्रॉपर्टी कैसा था, ठीक है, उसका नेचर कैसा था, टाइप कैसा था, ओनली यूजिंग दिस फैक्टर वी कैन नॉट डिफाइन। ओके, ऑल्सो क्या किया उन्होंने, ये सिल्क ग्रेड जो बोला था हम लोगों ने, ओके, एंड द चार्ज, मतलब कितना अमाउंट जा रहा है, ये सब भी उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नॉट टेकन इनटू, सो दीज आर द ड्रॉबैक्स। ओके, लेकिन एक ही इन्होंने मॉडिफिकेशन किया कि एडी करंट चारों तरफ से होता है, और इन्होंने रीजन को सिर्फ ओनली एक रीजन में कंसीडर नहीं किया, ही हैज कंसीडर्ड 3 टाइप्स ऑफ द रीजन। ओके, तो ये तुम्हारा एडवांटेज भी बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशंस। नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। सी, अ चैनल डिजाइन बाय लेसिस थ्योरी, कुछ प्रॉब्लम में दे विल give you, they will not say that whether it is derived, we have to use Kennedy theory या Lacy's theory, you have to, मतलब पढ़ना चाहिए तुमको, क्वेश्चन में पढ़ना चाहिए कि कैसा टाइप का कैनल है। बहुत सारे क्वेश्चन में लाइंड कैनल बोल देगा, बहुत सारे क्वेश्चन में अनलाइंड कैनल। ओके, उससे तुमको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा थ्योरी हमको यूज करना है। आई एम नॉट टीचिंग, आई हैव नॉट टॉट यू दिस वन लाइंड कैनल, अभी तक हम लोग सिर्फ अनलाइंड कैनल में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में तुमको बोला है कि अनलाइन कैनल डिजाइन करो, तो याद रखना 2 टाइप का मेथड है इसमें, लेसी और कैनेडी, दोनों टाइप का आ सकता है। ओके, अब उसके बाद तुमको क्वेश्चन पढ़ के एज्यूम कर लेना है कि ये वाला लेसिस थ्योरी से करना है, ना कि ये वाला तुम्हारा किससे करना है, कैनेडी से करना है। ओके, जैसे कैनेडी में तुमको क्या दिया रहेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, m का वैल्यू दिया रहेगा, स्मॉल m। ओके, सिमिलरली लेसिस में तुम्हारा क्या दिया रहेगा, सिल्ट फैक्टर, ठीक है। जहां पे सिल्ट फैक्टर दिया मतलब समझ लो लेसिस फैक्ट थ्योरी कंसीडर करने के लिए बोला है। बट इन दिस प्रॉब्लम सी दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लेसिस थ्योरी यूज करना है। ओके, so they have already asked you to design by using Lacy's theory. Okay, तो क्या क्या दिया है, parameter has a velocity, channel designed by Lacy's theory has a velocity of 0.88 meter per second and silt factor of 1.1. Then calculate the hydraulic mean depth. अब this is the option, now calculate, ठीक है। तो हम बोले थे फॉर्मूला लिखने के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का, these are the पैरामीटर्स which are provided to you, v दिया है, f दिया है। ओके, now what was the formula of hydraulic mean depth, किसी को याद है, नोट डाउन किया है, 5/2 v square by f। यस, सो दिस वाज द फॉर्मूला। अब निकालो इसका r का वैल्यू कौन सा आएगा, a b c d में 1.76। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे 5/2 v इसको पुट कर दो, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा तुम लोग का आईएएस इस सब में आता है। ओके, ये आया है एक बार। नाउ अब लेट अस गो टू द बिग प्रॉब्लम, डिजाइन करना है। ओके, सी डिजाइन एन इरिगेशन कैनल इन एलुवियल सॉइल भी बोल देता है, ओके, नॉन एलुवियल या एलुवियल भी बोल देता है। एलुवियल सॉइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग लेसिस थ्योरी। सी यहाँ पे क्या डिस्चार्ज Q दिया है, लेसिस सिल्ट फैक्टर F दिया है अगेन, ठीक है, एंड साइड स्लोप कितना दिया है, 1.2:1। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा देन रिमेंबर दैट दिस इज द x वैल्यू। ओके, जो भी फॉर्मूला में x है यही x है तुम्हारा। ओके, तो ये दिया है, so these are the factors given। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, what was the first step? मैम वेलोसिटी Calculate v। yes, so now calculate v, ठीक है। तो कैलकुलेट v करो, इसके लिए क्या जाएगा, q 15q में f1, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा, मैम 0.69। 0.69, बाकी दे मैम 0.69। वेरी गुड, सो v is 0.69। ओके, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, एरिया। एरिया। ओके, अब q पता है, v we have calculated, just put the values and find area। बाकी रखी করছো গো, 32 students are present। मैम 21.74। আচ্ছা দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, ডাউনলোড করে নিই।
So answer is your 22. No, कौन 21. 21.74 बोला मैम। ओके हाँ, ओके। सो एरिया निकल आया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? मैम पी बेर करते হবে। P. Now P he has given one formula. Okay, derive किया था उसने। So 4.7 into 4.75 into root Q. Q is 15. 18.39 मैम हाँ 18.4 मैम। हाँ हाँ 18.3 मैंने है ना 39 टाइप 4। वेरी गुड। ओके, अब क्या करना है इसके बाद? थोड़ा तुम लोग का कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, इसके बाद का स्टेप्स का। तो हम बोले थे यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए, यू गॉट द वैल्यू ऑफ पी। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला देर आर वन मोर फॉर्मूला, देर आर टू मोर फॉर्मूलाज। ओके, ए का और एक फॉर्मूला है, पी का भी और एक फॉर्मूला है, जो ट्रेपिजोइडल। ये क्रॉस सेक्शन कैसा है देखो, ऐसा वाला स्लोप में है, मतलब दिस इज ट्रेपिजोइडल इन सेक्शन। तो ट्रेपिजोइडल फॉर्मूला में तुम्हारा अगर ट्रेपेजोइडल कोई भी सेक्शन रहता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, पी का फॉर्मूला क्या है, वो निकाल के जस्ट सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज। ओके, तो देखो ट्रेपेजोइडल का पी का ये वाला फॉर्मूला है एंड ए का ये वाला फॉर्मूला है। ओके, इसमें क्या क्या चाहिए था, ये सब चाहिए, ये वैल्यू हम लोग को निकाल चुके हैं। दिस इज गिवन, दिस वी हैव कैलकुलेटेड, दिस आल्सो वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, तो पहले ये वाला इक्वेशन निकालो, तो इससे वाला क्या इक्वेशन आएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला? P is your 18.4, B is unknown, B को B रख दो, D को D रख दो, X का वैल्यू 0.5 स्क्वायर। ठीक है, करके अल्टीमेट इक्वेशन क्या आएगा? कैलकुलेट B इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, B इक्वल्स टू हाउ मच D? मतलब B इस साइड में रहेगा, B equals to मैम B equals to 18.4 हाँ minus 2.236 माइनस 2.24 D। वेरी गुड। तो ये आ रहा है सबका, सी B ये वैल्यू है 1.25 इंटू 2 करने से 2.36 आ रहा है। अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो तो 18.4 माइनस 2.236 D। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस B फॉर्मूला। ओके, जब B का जो भी ये इक्वेशन आ रहा है, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस इक्वेशन। ओके, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन व्हाट वी आर गेटिंग दिस। सी A का वैल्यू हमको पता है, B इज व्हाट, दिस मच, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, इनटू D प्लस X इज गिवन 0.5 D स्क्वायर। अब इससे तुमको नाउ हियर ओनली D इज अननोन, राइट? D सिर्फ अननोन है। अब नाउ D का एक इक्वेशन आएगा, दैट विल बी योर कैसा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज देखो स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक डिराइव होगा। मैम डी को तो 1.35। हाँ हाँ हाँ, তো ये कैसा आ रहा है देखो इक्वेशन। এখন কে জয়েন হচ্ছে এই টাইমে? बाकी लोग करो, बाकी लोग भी करो, आई वांट आंसर। मतलब कौन? मैम বিশাল বড় তো এই শ্রীধর কাপুর এ ফর্মুলা দিয়ে করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক है। আচ্ছা বলো তো কে আছে এখানে, বাকিরা তো চুপচাপ আছে। বিশ্বরূপ মাঝি, প্রতীক করছো, মনিরুল, समीर, প্রীতম, কৌশিক। কৌশিক কুন্তি চুপচাপ কেন গো, শোনা যাচ্ছে? অয়ন মন্ডল চলে গেল কেন? সুদীপ্ত নাগ, তনুশ্রী, হ্যাঁ ম্যাম করছি। यस मैम। রেসপন্স করো। तौसीफ, ऋणांजन, ये क्लास वर्क सबमिट करने का जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बाय हैंड। ओके, प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो बार बार जाके घर पे भी करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी दिस इक्वेशन। सी क्या करोगे यहाँ पे, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो करके, वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। ओके, नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुमको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बी और डी का वैल्यू निकालना है। ओके,
So these are the data which are required and this is the quadratic equation that we have derived. Okay, अब यहाँ पे क्या मैम करना है? দুখানা ডি বেরোচ্ছে তো ভ্যালু। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या था बोलो तो? This is quadratic equation. In order to solve this, suppose this is x square minus something x plus something, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या था? याद है किसी को? ये था कि नहीं था ये वाला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। আছো কি গো? আছি ম্যাম, আছি। So this is your श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यहाँ पे x क्या है? x is d। ओके, देखो x d है। This is your a, 1.736 is the a, b is your minus 18.4, ठीक है, माइनस भी इंक्लूड करना है, और c is 21.7। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, x का जगह पर d देखो ये करके ये वाला आ रहा है। ओके ম্যাম ডিটা কি 1.35 মিটার হ্যাঁ 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 আর देखो ডিটা হচ্ছে 15.4 यस মিটার। यस 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 वेरी गुड। तो ये d इक्वल्स टू का देखो दिस मच प्लस माइनस दिस बाय दिस, प्लस माइनस है तो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस से होगा d का वैल्यू, एक माइनस से d का वैल्यू। अब जब तुम लोग d का वैल्यू प्लस से निकालोगे तो देखो 9.242 मीटर आ रहा है। ओके, और d का वैल्यू अगर ये वाला माइनस ये प्लस को हटा के माइनस कर दोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.357 1.357। ओके, अब क्या करना है इसको? यू गॉट द वैल्यू ऑफ d, b का ये वाला था रिलेशन विद द d, क्या था b का रिलेशन 18.4 माइनस 2.236, तो दोनों बार एक बार 9.242 यहाँ पे पुट कर दो और एक बार 1.357 पुट कर दो। ओके, तो फॉर d इक्वल्स टू 9.242 के लिए तुम्हारा b आएगा माइनस में आ रहा है आंसर। ओके, सी 18.4 माइनस 2.236 इंटू 9.242 करने से ये माइनस में आएगा, विच इज एब्सर्ड, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। तो फॉर डी को इसमें करो, देखो अब डी के जगह पर यहाँ पे 1.357 पुट करके देखो कितना आ रहा है 15.36, विच इज ओके। सो आवर करेक्ट वैल्यू ऑफ डी इज व्हाट 1.357 और उसका करस्पॉन्डिंग डी कितना है 15.36 मीटर। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप है सिंपल, तुमको हाइड्रोलिक मीन दे तो स्लोप निकालना है, राइट? क्या क्या निकल आया हमको? b निकल आया, d निकल आया, a निकल आया, v निकल आया और p भी निकल आया। नाउ जस्ट कैलकुलेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड योर उसका क्या बोलते हैं स्लोप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ? 1.19। वेरी गुड, 1.19 मीटर, ठीक है। और तुम्हारा ये v को हमको कैलकुलेट कर दिए थे, इतना है, ठीक है। स्लोप कितना आ रहा है? दिस इज द फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 5245। हाँ, सो करने से देखो यहाँ पे f की जगह पर 1 बिठाओ, इट वाज गिवन, q वाज गिवन 15, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड वी आर गेटिंग दिस मच। ओके, सो ये है तुम लोग का गिवन डाटा, क्या क्या चाहिए था। और नाउ व्हाट इज द डिजाइन पैरामीटर्स, ये सब है डिजाइन पैरामीटर्स। क्लियर? v है इतना, a निकल आया, p, d, b, r एंड s। दिस इज नाउ योर डिजाइन ऑफ ऑनलाइन इरिगेशन कैनल यूजिंग लेसिस थ्योरी, मतलब कि लेसिस ने जो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव किया है उसको यूज करके वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है इतना तक? हाँ मैम। ओके, सो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन लाइन कैनल। इतना दिन तक क्या था? अनलाइन कैनल था। अनलाइन का कैनेडी एंड योर लेसिस से किए थे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर m क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दिया रहता है देन दैट इज योर कैनेडी, अगर सिल्फ फैक्टर दिया दैट इज लेसिस। ओके, अब आएंगे हम लोग लाइन कैनल में, इट दिस वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, এবার বলো তোমরা এখন দাঁড়াও, এনি ডাউট টিল নাও? ম্যাম কটা অবধি ক্লাস নেবেন? বলছি এনি ডাউট টিল নাও, আগে না, সেটা না। বলো। ওকে, যদি কালকে ডাউট থেকে না, আগে ঠিক ইজি ম্যাম মনে হলো, হ্যাঁ অনেকগুলো কারণ কি এমপিরিক্যাল ফর্মুলা আছে। একটাই ফর্মুলা একটাই দিয়েছে এটা। আচ্ছা,
তাহলে এখন আমি ব্রেক দিচ্ছি, তোমরা কি পরে আসবে নাকি কন্টিনিউ করব? ম্যাম ক্লাস কটা অবধি ম্যাম? ম্যাম কন্টিনিউ করে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন।